السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں سہار فاطمہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آغاز میں آپ کو بتائیں کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب آج صبح 11 بجے ہوگا۔ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم پاکستان کے امیدواران نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ اسپیکر کے لیے پی پی کے اویس قادر شاہ کا مقابلہ ایم کیو ایم کی صوفیہ شاہ سے ہوگا۔ ڈپٹی اسپیکر کے لیے اینتھنی نوید ایم کیو ایم کے راشد خان کے مد مقابل ہوں گے۔ پیپلز پارٹی نے بلا مقابلہ انتخاب کے لیے ایم کیو ایم سے کاغذات نامزدگی واپس لینے کی استدعا بھی کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا انتخاب 26 فروری کو ہوگا۔ امیدوار آج دوپہر 1 سے 3 بجے تک کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے۔ شام 6 بجے تک کاغذات کی اسکروٹنی ہوگی، جس کے بعد حتمی فہرست جاری کی جائے گی۔ پھر پیر کے روز اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ارکان ووٹ دیں گے۔ سندھ اسمبلی کے 148 نو منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا ہے۔ اسپیکر آغا سراج درانی نے اردو، سندھی اور انگلش میں ارکان سے حلف لیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے 9، جی ڈی اے کے 3 اور جماعت اسلامی کے 1 رکن نے حلف نہیں اٹھایا۔ سندھ اسمبلی کا پہلا اجلاس 148 نو منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر آغا سراج درانی نے اردو، سندھی اور انگلش میں ارکان سے حلف لیا۔ جیکو پاکستان جے قیام جو بنیاد آہے۔ اجلاس 40 منٹ تاخیر سے شروع ہوا۔ گھنٹیاں بجا کر ارکان کو ایوان میں بلایا گیا۔ 60 ارکان پہلی مرتبہ اسمبلی کے رکن بنے۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ نے 8ویں مرتبہ رکنیت کا حلف لیا۔ ایوان کی فضا نعروں سے گونجی تو اسپیکر نے اراکین کو روکا۔ اجلاس کے دوران بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جی ڈی اے، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ارکان نے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ حلف بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں شہباز شریف وزیر اعظم ہمارے ساتھ، پی ٹی آئی کا بھی شکریہ ادا کریں۔ انہوں نے اکثریت کے باوجود راستہ روکنے کی کوشش نہیں کی۔ بولے پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی سمیت کسی جماعت سے بات نہیں کی ہے۔ کہا 2018 اور 24 کے انتخابات میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ شریف صاحب وزیر اعظم بننے جا رہا ہے تو ہمیں بھی شکریہ کہے گا، مگر پی ٹی آئی کو بھی شکریہ کہے گا، اس لیے کہ پی ٹی آئی اکثریت ہونے کے باوجود انہوں نے تو کوشش ہی نہیں کی کہ شہباز شریف صاحب کا راستہ روکے اور اپنا امیدوار کو منتخب کروائے کہ وہ پیپلز پارٹی یا دوسرا سیاسی جماعتوں سے بات کرتے۔ انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا ہے۔ جو عجیب بات ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو دھاندلی کے بغیر جیت نہیں سکتے، وہ آج کل دھاندلی کے بارے میں احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ سیاسی، ہم بلیک میل نہیں ہوں گے، ہم اپنے کارکن کو انصاف دلوائیں گے۔ وہ سیاسی جماعتیں اور وہ سیاسی قوتوں جو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بار پھر میرا شہر کراچی میں اس قسم کی سیاست، تشدد کی سیاست تعارف کر سکتے ہیں، یہ ان کی بھول ہے۔ مسلم لیگ نون کے ملک احمد خان اسپیکر پنجاب اسمبلی بن گئے۔ سابق اسپیکر سبطین خان نے حلف لیا اور کرسی سے ان کے حوالے کر دی ہے۔ ملک احمد خان کو 327 میں سے 224 ووٹ ملے۔ سنی اتحاد کونسل کے احمد خان بچھر کو 96 ارکان نے ووٹ دیے۔ ملک احمد خان پنجاب اسمبلی کے نئے اسپیکر بن گئے۔ حلف لینے کے بعد سبکدوش ہونے والے اسپیکر سبطین خان نے کرسی ملک احمد خان کے حوالے کی اور انہیں مبارکباد بھی دی۔ اس سے پہلے ووٹوں کی گنتی پر سبطین خان نے ملک احمد خان کی کامیابی کا اعلان کیا تھا۔ نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز اور نون لیگ کے دیگر ارکان نے ڈیسک بجا کر اور نعرے لگا کر خوشی کا اظہار کیا۔ ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے پر مریم نواز نے بھی ملک احمد خان کو مبارکباد پیش کی۔ ملک احمد خان کے مد مقابل سنی اتحاد کونسل کے امیدوار احمد خان بچھر نے 96 ووٹ حاصل کی۔ صدر نون لیگ شہباز شریف نے ملک احمد خان کو اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ بیان میں کہا کہ خوشی ہے کہ پنجاب اسمبلی کو ایک پڑھا لکھا، تحمل مزاج اور محنتی اسپیکر میسر آیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کا اعزاز اور وقار بلند ہوگا۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں مریم نواز پنجاب کی ترقی کے لیے روڈ میپ کا اعلان آج کریں گی۔ صوبے بھر کی خواتین کے لیے بھرپور اقدامات کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ انشاءاللہ منتخب ہو کر چیف منسٹر پنجاب تمام جو بھی ان کا ویژن ہے، جو بھی وہ پنجاب کے لیے انہوں نے پلان بنایا ہے، اس کا باقاعدہ طور پر اعلان کریں گی۔ پہلے تو یہ پاکستان کے لیے اور اس خطے کے لیے اور پنجاب کے لیے فخر کی بات ہے۔ تمام خواتین جو پاکستان کی ہیں ان کے لیے فخر کی بات ہے کہ خاتون
पाकिस्तान के सबसे बड़े जो सूबा है आबादी के लिहाज से, उसकी और पाकिस्तान की पहली वज़ीर आला किसी भी सूबे की और पंजाब की वज़ीर आला, इस खित्ते में पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला का एज़ाज़ उनको हासिल है और ये अल्लाह ताला की नेमत है जो अल्लाह ताला ने दी है। तो उधर नूली के रहनुमा अतर तारड़ कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती क्योंकि उन्होंने ख़वातीन की लिस्ट ही जमा नहीं कराई थी। इलेक्शन कमीशन के आइन में दर्ज मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट पहले से जमा करवाना ज़रूरी है। वकील हैं, क्या आइन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि अगर कोई जमात में शामिल हो जाए आज़ाद अरकान तो उनको मखसूस नशिस्तें दी जाएं? जो नहीं, कौन सी जमात में शामिल हुए? अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में का एमपी इलेक्ट हुआ है कोई? नहीं, आइन में ऐसी इजाज़त नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप वकील हैं, आप वकील भी हैं, जब मर्ज हो जाएंगे फिर इलेक्ट ही हो जाएंगे। नहीं, जमात तो वो है ना जो एमपीए के हाउस में मौजूद है। आप ये काम नहीं कर सकते गैर कानूनी तौर पे कि आप एक ऐसी जमात में शामिल हो जाए जिसकी मेंबरशिप भी नहीं है लोअर हाउस की। आप PMLQ को ज्वाइन करते आपको मखसूस नशिस्तें मिलती। आपको वो जमात ज्वाइन करना लाजमी है जो पंजाब की मेंबर है। वो डेट गुजर गई रिजर्व सीटों वाली। रिजर्व सीटें उसकी बढ़ती हैं जो एग्जिस्टिंग हाउस के अंदर जो जमात मौजूद है उसका मेंबर बनता है। आप एक ऐसी जमात की मेंबर बन जाएं जो हाउस की मेंबर ही नहीं तो आपको सीटें कैसे मिलेंगी? तो दूसरी जानिब नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी को इससे भी ज़्यादा नशिस्तें मिलना थी। मैं गिन कर बता सकता हूं कि एक एक नशिस्त हमें कैसे मिली। मंजूर वसान ने GDA के एहतजाज को बिला जवाज़ करार दे दिया। सईद गनी का कहना था कि एहतजाज करना अपोजिशन का हक है, ये हल्फ लें या ना लें उनकी मर्जी है। ख्याल ये कामयाबी और ज़्यादा होनी थी, पर मैंने, अगर आपको याद होगा, बहुत पहले कहा था कि 90 से 95 सीटें लेंगे। मैं खुद थोड़ा सा शॉर्ट रहेंगे, आप सबको याद होगा। और मैं एक एक सीट गिन के आपको बताऊंगा कि कैसे हमने ली और कैसे हमारी सीटें कम भी हुई। इस मरतबा रिगिंग नहीं हमने करने दी है, ये हमारा कसूर है, ये कसूर है, लेकिन तैयार हैं हम। अगर ये बेटा बाप कहें दोबारा इलेक्शन तो हम तैयार हैं। मुल्क में हालात सही नहीं रहेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी का फ्यूचर होगा और पीपल्स पार्टी के बगैर कहीं पार्टी हुकूमत नहीं बना सकेगी। यार एहतजाज पुरअमन करने का तो सबको हक है, उनको करना चाहिए, लेकिन एहतजाज करके अगर किसी और का रास्ता रोकना चाहते तो ये गैर कानूनी बात है। ये तो हलफ उठाने को तैयार नहीं है, क्या होगा? उनकी मर्जी ना उठे। ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन था। हुकूमत ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। मखलूत हुकूमत जितनी देर रहेगी मुल्क को नुकसान होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश से गुफ्तगू। कहा पहले फैसले हो गए फिर इंतखाबात हुए। दो खानदानों की बादशाहत से मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इलेक्शन नहीं था, ये माजी की तरह उसी तरह एक एक्सरसाइज, एक सिलेक्शन जिसको इलेक्शन का नाम दिया गया। हुकूमत तो अब बन ज़रूर जाएगी, लेकिन आप देखेंगे ये 9 महीने 8 महीने चलेगी भी या नहीं चलेगी। पाकिस्तान को नुकसान होगा, वफाक को नुकसान होगा, 25 करोड़ आवाम को नुकसान होगा। यहाँ पहले से फैसले होते हैं, इलेक्शन उसके बाद होता है। पीपल पार्टी की हुकूमत एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार 5 बार हमने देखा है। मुस्लिम लीग को 1 2 3 4 बार नहीं, बार बार हमने देखा। ये वही पुराने लोग हैं, इसलिए इनके होते हुए मुल्क में न इनकलाब आ सकता है, न तब्दीली आ सकती है, न खुशहाली आ सकती है। ये मफादात की लड़ाई है, इससे पाकिस्तान के आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा। MKM पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी के राबतों के बावजूद सिंध असम्बली में स्पीकर डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। अपोजिशन लीडर अब्दुल वसीम कहते हैं हमारे पास तालीम याफ्ता नौजवानों को बड़ी तादाद मौजूद है, सूबे की बेहतरी के लिए साथ देंगे, इलेक्शन लड़ना जमहूरी हक है। सिंध असम्बली के पहले इजलास में हल्फ बर्दारी के बाद MKM पाकिस्तान ने स्पीकर सिंध असम्बली के लिए राशिद खान जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए सूफिया शाह के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। असम्बली के बाद मीडिया टॉक में MKM पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर अब्दुल वसीम का कहना था कि हम असम्बली में खामोश नहीं बैठेंगे, हमारे पास हर शोबे के काबिल लोग ऐवान में हैं। नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, PhD भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, एडुकेट भी हैं, तमाम हायर डिग्री लेकर यहाँ मौजूद हैं। इनके इस डिग्री से, इस तालीम से फ़ायदा उठाया जाए और इस सूबे को फ़ायदा मुहैया किया जाए। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन पर फिलहाल दस्तबरदारी का कोई इरादा नहीं। असम्बली में MKM पाकिस्तान की जानिब से स्पीकर डिप्टी स्पीकर के लिए इलेक्शन के हवाले से MKM ने दीगर जमातों से भी राब्ते तेज कर दिए हैं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM का अवाम से कोई ताल्लुक नहीं, दोनों जमातों का मैंडेट जाली है। सूबाई असम्बली में जाली मैंडेट वाले बैठे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की बातचीत, कहा बिलावल भुट्टो का वजीर आजम का ख्वाब उसी वक्त चकनाचूर हो गया था जब कराची में जाली मेयर बनाया। कराची में सिर्फ PTI और जमात इस्लामी को वोट मिले हैं। में बैठने वाले MQM और पीपल्स पार्टी के इन कब्जागीरों का अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, ये जाली मैंडेट लोग, ये कब्जा मैंडेट वाले हैं। ये आरओ के लिखे हुए, बल्कि आरओ को लिखकर दिए हुए फैसलों की बुनियाद पर, फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनने वाली जाली लीडरशिप है जो इस सिंध असम्बली में लाकर बिठाई गई है। बिलावल साहब का तो जहाज, वजीर आजम का जहाज उसी वक्त क्रैश हो गया था जब उन्होंने कराची की मेयरशिप पे कब्जा किया था। इस शहर कराची में तो हमने देखा है वोट या तो PTI को मिले हैं या जमात इस्लामी को मिले हैं। मछली, चिकन बोटी, टिक्के, चिकन कोरमा, रोगनी नान, पूरी पराठे और भी बहुत कुछ। 9 मुंतखब अरकान सिंध असम्बली की हल्फ उठाने के बाद पार्टी हो गई। ज़ोहराने में चाय और कहवा भी पेश किया गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 28 फरवरी को दिन 11 बजे तलब कर लिया गया। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर KP असम्बली मुश्ताक अहमद गनी 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने असम्बली इजलास की समरी पर दस्तखत कर दिए। समरी गुज़िश्ता रोज़ निगरां वज़ीर आला KP के अरशद हुसैन ने गवर्नर को भेजी थी। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं नाकामी का खौफ रखने वाला शख्स कभी कामयाब नहीं होता। तलबा को नसीहत की कि खुद को इंतशार और बदतहजीबी से दूर रखें। लाहौर में शरीफ मेडिकल ट्रस्ट का कॉन्वोकेशन से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ का लगाया गया पौधा आज मजबूत दरख्त बन चुका है। डरना नहीं, घबराना नहीं, खौफ रखने वाला शख्स कभी कामयाब नहीं होता। कायद नून लीग नवाज शरीफ की तलबा को नसीहत। लाहौर में शरीफ मेडिकल ट्रस्ट के कॉन्वोकेशन में खिताब करते हुए कहा नौजवान खुद को इंतशार और बदतहजीबी से दूर रखें। अखलाक़े हुस्ना का ऐसा पैकर बने कि लोग आपके किरदार को देखकर मिसालें दें कि ये वो कौम के बेटे और बेटियां हैं जो पढ़ लिख कर मुआशरे की खिदमत कर रहे हैं। आपने इत्तेहाद, इस्लाह, फलाह और मुआशरे में बेहतरी के लिए दिल लगाकर मेहनत करनी है और ख़ुद को इंतशार, तकसीम, गाली गलोच और बदतहजीबी से दूर रखना है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा आज तलबा को उनकी शबाना रोज मेहनत का समर मिल रहा है। आज जिन बच्चों और बच्चियों को मेडल्स मिले हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल्स और सर्टिफिकेट्स मिले हैं, ये सिर्फ उनकी शबाना रोज मेहनत का नतीजा है और यहाँ पर मौजूद उनके असातिज़ा कराम उनकी बेहतरीन तख्लीक और मेहनत का नतीजा है। शरीफ मेडिकल ट्रस्ट के तलबा को इस्नाद और तमगे दिए गए। लाहौर बार एसोसिएशन के इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप कामयाब हो गया। असद मंजूर बट सदर मुंतखब हो गए। उन्होंने आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार साकिब अकरम गोंदल को शिकस्त दी। असद मंजूर बट ने 6195 वोट लिए। उनके मद्दे मुकाबिल साकिब अकरम गोंदल को 5768 वोट मिले। सेक्रेटरी के ओहदे पर कादिर बख्श कामयाब हुए हैं। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयान देने पर शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइजर उमर अयूब ने बैरिस्टर गौहर के खिलाफ बयान देने पर नोटिस जारी किया। शेर अफजल मरवत को गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने की हिदायत भी जारी कर दी। फैसलाबाद से जहां एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की एयरपोर्ट पर कार्रवाई, बहरीन जाने वाले मुसाफिर से 1 किलो 850 ग्राम आइस हेरोइन बरामद कर ली गई। मुसाफिर मोहम्मद अनस ने आइस हेरोइन बैग की तह में छुपा रखी थी। ASF के अमले ने मशकूक बैग से मनशियात बरामद करके स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिम को मनशियात समेत मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए ANF हुकाम के हवाले कर दिया गया। सजावल में खसरे की वबा बेकाबू हो गई है। खसरे में मुब्तला मजीद 3 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। 1 साल के अलीशा, 2 साल का शिकाउल्ला और रेहान खसरे के बायस जाँ बहक हो गए। 1 हफ्ते में जाँ बहक बच्चों की तादाद 8 हो गई है।
फैसलाबाद केनाल रोड पर कार की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। हादसे में जाँ बहक शख्स की शनाख्त 40 साल आजम के नाम से हुई। मियांवाली में बन्नू रोड पर बस और मोटरसाइकिल में भी तसादुम हुआ, जिससे एक शख्स जाँ बहक और एक शदीद जख्मी हुआ। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे और गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो गजा में 24 घंटों के दौरान काबिज इसराइली फौजियों ने शहरी आबादी पर हमला किया। 8 खानदानों के कत्ले आम में 80 से ज़्यादा अफराद शहीद कर दिए। गजा में इजरायली फौज की कार्रवाइयों का सिलसिला थम न सका। रोजाना दर्जनों निहत्ते फलस्तीनी इजरायली जुनूनियत की भेंट चढ़ जाते हैं। ताज़ा हमलों में 83 फलस्तीनी शहीद जबकि 123 जख्मी हो गए। एम्बुलेंस और इमदादी टीमें तबाहाल इलाकों में पहुंचने में नाकाम रहीं। इजरायली फौज मलबे तले और सड़कों पर बिखरी लाशों को इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं दे रही। मुकामी महकमा सेहत ने तस्दीक की है कि 7 अक्टूबर से इजरायली हमलों में शहदा की तादाद बढ़कर 29,606 हो गई, जबकि मजीद 69,737 अफराद जख्मी हुए हैं। इसराइली काबिज फौज फलस्तीनियों का खून बहाने के बाद जिंदा लोगों से उनका रोजगार भी छीनने लग गई। काबिज फौज ने खूबसूरत वादी कना के फलस्तीनी किसानों को ज़मीनों पर हल चलाने से रोक दिया है। मुकामी कारकुन ने फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी को बताया कि काबिज फ़ौज ने अल-मकासिम के इलाके में मालिकाना हुकूक रखने के बावजूद काश्त का अमल रुकवा के एक फ़लस्तीनी किसान को हिरासत में ले लिया। काबिज फ़ौजियों ने फ़लस्तीनी किसानों को कहा, ये इलाका फ़ौजी इलाका है। इसराइली फ़ौज ने वादी कना की कुदरती चरागाह में मवेशी चराने पर भी पाबंदी आयद कर दी। खबर शामिल करेंगे टेक्सला से, जहां पुलिस ने बूढ़ी औरत को बुरी तरह पीट डाला। कचहरी के बाहर पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के दौरान खातून पर तशद्दुद किया। एएसआई इम्तियाज ने बूढ़ी औरत को थप्पड़ मारे और धक्के दिए। मुलजिम बसीर खान को टेक्सला कचहरी के बाहर पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की, जिस पर यह वाकया पेश आया। मुलजिम की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस एहलकार ने मां को थप्पड़ मारे। पुलिस मुलजिम बसीर को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गई। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन के 10वें मैच में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। कलंदर्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट्स पर 175 रन बनाए। जवाब में कराची किंग्स ने 176 रन का हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर आखिरी गेंद पर पूरा कर लिया। भावलपुर में सहरा के कठिन और खतरनाक ट्रैक पर रेसर्स की महारत का इम्तिहान जारी। 19वें चोलिस्तान इंटरनेशनल जीप रैली के चौथे रोज माहिर ड्राइवर्स ने उम्दगी से तयशुदा ट्रैक अबूर किया। सहरा का सीना चीर कर धूल उड़ाती गाड़ियों पर देखते हैं मुर्तज़ा चौधरी की ये रिपोर्ट। और अब बढ़ती हुई महंगाई की बात करें तो यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी ज़रूरत की कई अशिया मार्केट से भी महंगी हैं। बाजार में 20 किलो आटे का थैला 2,792, यूटिलिटी स्टोर्स पर 2,840 रुपये का है। सेला चावल भी आम मार्केट की निस्बत यूटिलिटी स्टोर पर 53 रुपये फ़ी किलो महंगा। चीनी भी बाजार से 9 रुपये फ़ी किलो ज़ायद कीमत पर फरोख्त की जाने लगी। खबर शामिल करेंगे पेशावर से, जहां गैस लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। सार्फिन महंगे गैस सिलेंडर्स और लकड़ी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। कहते हैं बिल बड़े बड़े आते हैं लेकिन गैस नहीं। पेशावर से देखते हैं नवाब शेर की ये रिपोर्ट। पेशावर में गैस लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। गैस ना होने से खवातीन को अमूर खानादारी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गैस तो बिल्कुल आ ही नहीं रही। बच्चे सुबह स्कूल नाश्ता किए बगैर चले जाते हैं, दोपहर का खाना बनता नहीं है, रात का भी खाना बनता नहीं है। गैस आती है तो प्रेशर ही इतना कम होता है कि उसके ऊपर कोई काम नहीं किया जा सकता। शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में घंटों घंटों गैस गायब होने से शहरी जहनी मरीज बन गए। सिलेंडर और लकड़ी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। ये गैस ज़रूरत है रोज़मर्रा की, आदमी मतलब खाने पकाने के लिए ज़रूरत होती है। तो पहले ही है ही नहीं, 1 मिनट के लिए आती है फिर चली जाती है। सुबह के टाइम 1 घंटा होती है, सारा दिन नहीं होती है। गैस पहले बात तो है कि आ ही नहीं रही ना, यानी 24 घंटों में अगर 8 घंटे हैं वो भी ना होने के बराबर है। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन हुकूमत से गैस लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरामैन आसिफ रजा के साथ नवाब शेर, बोल न्यूज़, पेशावर।
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ برلن جرمنی میں ادارہ منہاج القرآن انٹرنیشنل برلن میں شب بارات کے مناسبت سے محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں تلاوت کلام پاک اور نعت شریف پڑھی گئی اور نماز تسبیح ادا کی گئی۔ پاکستانی کمیونٹی نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ لوگ اپنے خالق کائنات اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی اور دنیا فانی سے گزر جانے والوں کی ارواح کی دعائیں مغفرت مانگتے رہے۔ شب برات پر اکثر شہری اپنے پیاروں کی قبروں پر جاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، لیکن حیدرآباد میں یہ سب بہت مشکل ہو چکا۔ کیا وجہ ہے، جانتے ہیں عرفان آرائیں کی اس رپورٹ میں۔ یہ مناظر حیدرآباد کے قدیم قبرستان ٹنڈو یوسف کے ہیں، جس کی صورتحال انتہائی خراب ہے، لیکن بلدیاتی اداروں کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ شہری شب برات سے پہلے خود صفائی کرنے میں مصروف موقع پر قبرستان آتے ہیں تو صورتحال دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ یہ بنی ہوئی قبریں بھی توڑ کے چلے آتے ہیں لوگ، سریے نکال لیتے ہیں۔ یہاں پہ جو مہر ہے، یہاں پانی کی سیٹنگ نہیں ہے، یہاں پہ کچرا کوڑی پڑی ہوئی ہے بہت بری طریقے سے، کوئی صفائی کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو ہمیں کوئی اتنا کوئی صاف ستھرائی کا کوئی جو نا نظر نہیں آتا، لہٰذا کچرا بھی ہمارے کی ورثاء کی قبروں پہ پڑا رہتا ہے، اس کا بھی صفائی نہیں ہوتی، نہ کوئی لائٹ کا چکر، پھر جگہ جگہ پہ پانی کا پریشانی۔ یہاں کی جو حکومتیں ہیں وہ کچھ اس قبرستان کے لیے کر نہیں رہے، آخر ان کو بھی اسی قبر کے اندر آنا ہے میرے بھائی۔ حیدرآباد کے قبرستانوں میں گندگی کے ڈھیر اپنے پیاروں کی قبروں پر آ کر دعا کرنے اور پھول چڑھانے والوں کا استقبال کرتے ہیں، لیکن بلدیاتی اداروں کو کسی کی پریشانی کا کوئی احساس نہیں۔ کیمرہ مین عمران راجپوت کے ساتھ عرفان آرائیں، بول نیوز، حیدرآباد۔ تو ادھر سکھر شہر میں ترقیاتی کاموں کو گرہن لگنے لگا۔ سڑکوں کے کنارے نصب خوبصورت لوہے کی گرل پر چور ہاتھ صاف کرنے لگے۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے سکھر سے شاہد علی کی یہ رپورٹ۔ سکھر میونسپل کارپوریشن کے میئر بیرسٹر ارسلان شیخ نے سڑکوں کے کنارے خوبصورت ریلنگز اور گرلز لگوائیں، روڈ سائڈ پارک بنوائے۔ ان سڑکوں اور پارکس کی خوبصورت حفاظتی دیواریں بنوائی، لیکن سکھر انتظامیہ ان ریلنگز کی حفاظت میں ناکام نظر آتی ہے۔ یہاں گرل لگی ہوئی تھی اور سارا کچھ ختم ہو گیا ہے، چوری بوری بھی ہو گئی ہے۔ اتنا مال خرچ کیا، پیسہ خرچ کیا، کوئی انتظام نہیں، کوئی خیال نہیں، کوئی کہاں سے آیا لوٹ کے چلا گیا، کوئی کہاں سے آیا لوٹ کے چلا گیا۔ پہلے جو تھا یہ پارک بہت اچھا تھا، ابھی جو ہے نہر والی سائڈ پہ ٹوٹی ہوئے سارے جو دیواریں بھی اور کھڈا لگا پڑا ہے۔ حیرت انگیز طور پر ملٹری روڈ جیسے مصروف روڈ اور روڈ سائڈ پارک سے لوگ لوہے کی گرل اور ریلنگ چوری کر رہے ہیں اور کوئی چور پکڑا نہیں جا سکا ہے۔ شہر کے خوبصورت ترقیاتی منصوبوں میں بڑے پیمانے پر فنڈز کا استعمال تو ہو رہا ہے، لیکن ان ترقیاتی منصوبوں کی دیکھ بھال اور سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر ہے۔ سندھ کا قدیم شہر نیرون کوٹ جو آج کا حیدرآباد ہے، اس شہر کو شناخت دینے والے بادشاہ غلام شاہ کلہوڑوں کا مقبرہ آج بھی آباد ہے۔ مقبرے پر آنے والے زائرین کیا ساتھ لاتے ہیں، دیکھتے ہیں حیدرآباد سے عرفان آرائیں کی یہ رپورٹ۔ حیدرآباد کے علاقے سینٹرل جیل روڈ پر قدم رکھیں تو نیرون کوٹ کے بادشاہ غلام شاہ کلہوڑوں کا مقبرہ عظیم الشان تاریخی کی عکاسی کرتا نظر آتا ہے۔ یہ مقبرہ 1772 عیسوی میں تعمیر کیا گیا۔ عقیدت رکھنے والے زائرین ہر جمعرات کو منتیں مرادیں لے کر مقبرے پر حاضری دیتے ہیں۔ مرادیں پوری ہونے پر خاص طور پر مچھلی کا لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ سندھ کے قدیم شہر نیرون کوٹ کے بادشاہ غلام شاہ کلہوڑوں نے اپنے دور حکومت میں نہری نظام قائم کیا جو آج بھی ان کی پہچان ہے۔ کیمرہ مین عمران راجپوت کے ساتھ عرفان آرائی، حیدرآباد۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں خواتین کے لیے رنگا رنگ ثقافتی میلہ سجایا گیا۔ خواجہ سراؤں نے بھی اسٹال لگائے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد علی جا۔ پاکستانی خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ۔ اسلام آباد کے مال میں ثقافتی میلہ سجا جہاں بڑی تعداد میں اسٹالز لگائے گئے۔ مختلف طریقے، سارے مختلف ٹریڈیشنل جیولری ہے، ٹریڈیشنل شالز ہیں، ہینڈی کرافٹ ہے، ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ خواتین نے ہاتھوں سے بنے برتن، جیولری، کپڑے اور پینٹنگز کے اسٹالز لگائے۔ رائٹ ناؤ یہاں پر ہمارا جو ہم جس کو ڈسپلے کریں وہ ہمارے جتنی بھی ہیں کلودنگ آئٹمز ہیں یا جو کپڑے وغیرہ ہیں ان کو ہم کر رہے ہیں۔ تو ہمارا جیولری بھی ہے، انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ اور اس کے علاوہ ویب سائٹ موجود ہے۔ فرنیچر کا آن لائن بزنس کرنے والے خواجہ سراؤں نے بھی میلے میں اسٹال لگایا اور اپنی کمیونٹی کو ترغیب دی کہ باعزت کاروبار ان کا حق ہے۔ اسٹال میں نے فرنیچر کا لگایا ہوا ہے، جہاں میں نے چھوٹی آئٹمیں لا کے رکھی، ٹرے وغیرہ، وال ہینگنگ
टेबलें, ठीक है, अलमारियाँ भी छोटी छोटी पड़ी हैं। वैसे तो हम फर्नीचर की सारी चीज़ें बनाते हैं। हम 10 लोग हैं जो सारी चीज़ें बनाते हैं और सेल भी करते हैं। इसकी जो प्रॉफिट होती है सारी हम लोग को मिलती है। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारा निज़ाम सही चल रहा है। और जो लोग मांग रहे हैं उनको कुकिंग के लिए काम पे रख लें, सिलाई कढ़ाई के लिए रख लें, किसी के काम पे भी रख लें, तो लोग मांगना छोड़ दें। ज़हनी मसाइल के मुतालिक आगाही के लिए माहिरीन नफ्सियात भी मेले में मौजूद थे। लोगों का कहना था कि इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेपनाह टैलेंट से नवाजा है कि ख़वातीन को इस तरह मज़ीद मौक़े मिलने चाहिए ताकि वो मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। कैमरामैन हारून मुगल के साथ मोहम्मद अलीजा खान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची के इलाके कोरंगी में वाक़ इंडस अस्पताल ने रमज़ान मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। सैकड़ों अफराद की मौजूदगी में मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन फंड रेजिंग कमेटी सलीम रज़ाक ताबारी ने कहा, मुहिम का मकसद सहूलियात की मुसलसल फराहमी को यकीनी बना रहा है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट सैयद मशहूद रिजवी ने कहा, इंडस अस्पताल सेहत का बड़ा नेटवर्क चला रहा है। दीवान मोटर्स ने पाकिस्तान में पहली बार BMW की i5 गाड़ी और 1300 सीसी मोटरसाइकिल मुतारिफ करवा दी। उनकी खुसूसियात पर देखते हैं सना आरिफ की ये रिपोर्ट। गाड़ियों के शौकीन अफराद और बाइक लवर्स के लिए अच्छी खबर। दीवान मोटर्स ने पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ी BMW i5 मुतारिफ करवा दी। 340 हॉर्स पावर की गाड़ी एक चार्ज में 500 किलोमीटर चल सकती है। ये गाड़ी AC चार्जर से 7 से 8 घंटे और DC चार्जर से 1 घंटे में चार्ज होगी। दीवान मोटर्स ने 1300 सीसी मोटरसाइकिल भी मुतारिफ करवाई जो इंतहाई आरामदेह है। तो आप इस पे आराम से, इस वक्त जो बाइक कम्युनिटी है वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जा रही है। और फर्स्ट क्वार्टर जो कि जैन फेब मार्च, ये एक अच्छा मौसम होता है, और क्वार्टर 4 जो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, उसमें ये लोग बाय रोड बाइक से यहाँ से पूरा नॉर्दर्न एरियाज़ कवर कर आते हैं, जो एक बहुत अच्छी बाइक कम्युनिटी की एक्टिविटी हो रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें कम खर्च भी हैं और माहौल दोस्त भी। ये मोटर्स पाकिस्तान के डॉलर्स भी बचाएंगी। कैमरामैन दानिश शकील के साथ सना आरिफ, बोल न्यूज़, कराची। एक्सपो सेंटर कराची में सजा कैटल शो। डेल्फा के कैटल शो में मुल्क भर से मवेशी नुमाइश के लिए कराची पहुँच गए। मोहम्मद एंड इब्राहिम कैटल फार्म की जानिब से भी हालार से बकरे लाए गए। बकरों की रोज़ की खुराक में ताज़ा दूध दिया जाता है। नुमाइश इतवार तक जारी रहेगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च 12वें रोज़ भी जारी है। हरियाणा पुलिस का किसान मुजाहिरीन पर तशद्दुद का सिलसिला भी जारी रहा। दिल्ली चलो मार्च के दौरान अब तक 5 मुजाहिरीन जान से हाथ धो बैठे हैं। किसान की हलाकत के बाद किसान रहनुमाओं ने मुज़ाकरात के चौथे दौर में हुकूमत की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। एहतजाज करने वाले भारतीय किसानों ने मोदी और दीगर BJP वुज़रा के पुतले जलाए। सिख किसान दर्शन सिंह, 62 साला किसान खानवरी बॉर्डर पर दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। पंजाब से बाहर भी किसान यूनियंस के एहतजाज को वसी करने की कॉल दे दी। मेरे बच्चों में सारी आदतें मौजूद हैं मेरी, तो फिर इन बदनसीबों को ना क्यों उर्दू ज़ुबान आई। उर्दू का आज कौमी दिन है। 25 फरवरी 1948 को उर्दू ज़ुबान को कौमी दर्जा दिया गया। इसी तारीख को दस्तूर साज असम्बली ने उर्दू को पाकिस्तान के कौमी ज़ुबान करार दिया। 21 अप्रैल 1948 को बाबाए क़ायद मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने ढाका में जलसे से खिताब में कहा कि पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान उर्दू और सिर्फ उर्दू होगी। 1973 के आइन में भी क़ायद के कौल का इआदा किया गया। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।